today we generally discuss the jQuery selector. So what is selector? Like हमने जब CSS पढ़ा था, हमने जब Bootstrap पढ़ा था, and JavaScript, sorry, whenever we have started with CSS and जब JavaScript पढ़ा था, तो selector word बहुत popular था उस time पे. Selector means to select the element so that we can apply some task on that particular tag. Okay, so similarly, because JavaScript is also basically used to apply some DOM manipulation. So in jQuery, if we need to apply some DOM manipulation task, okay, then we need to find out which element we have to be selected. Okay, so here in jQuery, there are two kind of selector. One is the basic one, which generally we use in many JavaScript statements. Okay, and the next one is the advanced selector. So I'm going to start with the basic selector, and the basic selector is the like just getting that element by their ID, getting the list of element by their class name, or by selecting the tag name. So these are the basically three kind of selectors that we are going to use in this topic as well. Okay. No, Kanish, ये हुआ नहीं है. We have just give a small introduction part. Okay, introduction में थोड़ा सा part आया था. Okay, so आज हम क्या करते हैं? We will apply some jQuery statements based on the basic selector as well the advanced selector. Okay, so I'm just starting with the basic selector, and I'm also explaining the same thing with the advanced selector. So the next slide that I'm going to explain it is the advanced selector. Okay, so basically होता क्या है कि JavaScript हो जाए चाहे वो jQuery हो, the selectors are almost similar because we have to find out the element where you have to be apply the jQuery statement. So you will see here the selectors are almost similar to JavaScript as well as in the CSS. Okay, like in the first selector, that is this star. Star means everything. Okay, you are targeting every element. Okay, similarly जब आप दूसरे पे चलते हैं, दूसरे selector की बात कर रहा हूँ, unordered list li. It means unordered list के अंदर जो next li है, ठीक है, उसको target कर रहे हो. Means the li is a child of unordered list. Okay, so you will use unordered list. Space represent that the next element we have to apply. I think the same selector we have used in CSS. Okay, now the third one is I'm targeting ABC class as well as XYZ class. So I'm targeting both classes using the same statement. Okay, now the fourth one is I'm targeting different elements at the same time. So I'm targeting the H1, I'm targeting the div elements, all div elements, I'm targeting all the paragraphs. So basically these are all elements that belongs to that web page. Okay, now next we have discussed that like p colon first. I think we have used these pseudo elements in already in the CSS. So similar, the same manner we are going to use here. P first means the first element in the paragraph. In the list, there will be a first paragraph, just target that element. Similarly, P last means P last का मतलब क्या होता है? वेब पेज के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है उसको टारगेट करना, दैट इज पैराग्राफ. लास्ट पैराग्राफ को टारगेट करना है. ओके, सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज इवन. मींस लिस्ट आइटम के अंदर जो भी हम आपके इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इवन लिस्ट, इवन इंडेक्स के जो एलिमेंट है उसको टारगेट करना. एंड सिमिलरली li odd मींस odd लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को टारगेट करना. So these are the selectors that are under the category of advanced selectors. Okay, the first one is the previous slide is the basic one where we are just target the directly using the class, using the ID or directly the name. Okay, here I'm accessing the advanced selectors. Okay, okay, Kanish क्या कह रहे हैं सर? Can we use your CSS? आप दो IDs को भी एक साथ target कर सकते हो. Okay, now let's create a basic program जहां पर इन सारे selectors है उसका यूज करके देखते हैं.
Okay, so I'm going to select jQuery folder which we have created in the last lecture. Okay, तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ. नहीं, okay, I'm going to create a new file named jQuery selector .html. Okay, okay, now I'm going to create the skeleton, and in the title I just use jQuery selector. Okay, now because मुझे jQuery यहाँ अप्लाई करना है, तो मुझे एक्सटर्नल jQuery लाइब्रेरी को लिंक करना होगा. So I'm using script source tag, and in the source I just pass the jQuery file. Okay, now we have already studied the bootstrap, तो मैं थोड़ा सा bootstrap भी इसके अंदर डाल रहा हूँ. So I use link CSS, and in this statement I am just passing the CSS file, bootstrap min.css file. Okay, so in the body section I am creating the container. Okay, and I'm also adding empty tree. Okay, so it will create container class as well as the margin top. Okay, now here I'm going to create I'm writing the h1 and just writing jQuery selector. Okay, now after that I'm going to create an hr. Okay, now here I'm going to create one heading, that is h2, with the class text, just with the text. I think okay, no issue with that. h2 से start कर लेते हैं, सिंपल h2 ही लिख लेते हैं, मुझे इसमें अप्लाई करना था. ओके, तो मैं लिख देता हूँ इसमें heading 1. Okay, now I'm going to create a paragraph with the class text justify. Okay, text justify is basically the class of bootstrap. Okay, now I'm adding lorem 50 words. Okay, now मैं इन दो पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ heading 2, और here I'm also adding another class called para2, and here I'm adding the class heading 1, and यहाँ पर मैं एक ID यूज कर लेता हूँ para1, and here I'm using another ID as heading 1. Okay, let's see the output of the screen. मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर के साथ. Okay, so you will see this is a jQuery selector, that is the main heading. यहाँ h1 है और एक heading 2 है. ठीक है, h2 के साथ मैंने headings बनाई है. Okay, I'll try to make it center. तो आप क्या करोगे यहाँ पर class text center. Okay, now it's look better. Okay, now I'm adding some span here. मैं कुछ span elements भी add कर रहा हूँ, तो मैं इस element को span में डाल देता हूँ. Okay, okay, similarly मैं दूसरे एलिमेंट को भी एक एलिमेंट को स्पैन में डाल देता हूँ. ओके, और इसको भी स्पैन में डाल देते हैं. ओके, नाउ okay, I think now I'm going to apply the basic selector as well as the advanced selector. Okay, so मैं चलता हूँ नीचे. ओके, यहाँ पर मैं अपनी jQuery लिखता हूँ, तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा. ओके, एंड आई एम गोइंग टू यूज document.ready, even though the content is already loaded, but still I'm using because it's good practice. अगर आप लोग document के अंदर आप अपना डालते हो, ठीक है. So I'm calling a function here, anonymous function. Now I'm going to use the first selector. So I'm using dollar statement,
and in that dollar statement I have to use the selector. So first I'm targeting the ID selector. So I'm using heading 1. Okay, तो आप इसको सिंगल कोट में डालोगे. So heading 1 के नाम से मैंने ये बना रखी थी ID. Okay, now I'm calling one method that we called hide. So hide method is like it will make the content disappear. Okay, so you will see now the heading 1 is not seen over here. So basically hide क्या करता है, hide एक class add कर देता है that is called display none. Okay, so display none करोगे तो आपका क्या होगा, the element will not be there in that place. ठीक है, तो यहाँ इसको मैंने क्या किया, उसको हाइड कर दिया. सो मैंने क्या किया, कौन सा सिलेक्टर यूज किया, आई एम यूजिंग द आईडी सिलेक्टर. ठीक है, ओके, जस्ट यूज हैश लाइक वी यूज इन सीएसएस, और आपने उसके जो भी आपने आईडी रखी है उसको यूज कर लो. ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू रिमूव द पैराग्राफ एज वेल. तो पैराग्राफ को रिमूव करना है, कोमा लगाएंगे, हैश यूज करेंगे, आपका दूसरा आईडी थी पैरा 1, so you will see the paragraph 1 also disappear. Okay, so मैंने at the single line I am using the 2 IDs. Okay, now let's talk about class. ठीक है, अगर मुझे क्लास के साथ काम करना है, simply you can use dot and the name of the class. Okay, the class name is I am using heading 2. Okay, heading 2, या आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं H2. H2 इज द एलिमेंट नेम, और अगर उसके अंदर हेडिंग 2 है तो आप उसको कॉल कर रहे हैं. ठीक है, जनरली आप ऐसा नहीं करते. आप अगर आपको सारे H1 को टारगेट करना है, सपोज पैराग्राफ इज ऑल्सो हेडिंग 2, मैं इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ, एंड पैराग्राफ इज ऑल्सो हेडिंग 2. ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से यूज करता हूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ H2 को हटाएगा. देखो, ठीक है, नाउ H2 हेडिंग हैव बीन रिमूव्ड, H2 हेडिंग हैव बीन रिमूव्ड. बट अगर आप चाहते हो क्लास, तो डॉट हेडिंग 2 के नाम से जितनी भी एलिमेंट्स होंगे जो उस क्लास से बिलोंग करते होंगे, वो दोनों डिसअपियर हो जाएंगे. देखो, पैराग्राफ इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आईडी, पैराग्राफ ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लास हेडिंग 2, and head जो आपका H2 था that is also belongs to class heading 2. So both element have been removed. Okay, so I'll just make this is I make it element 2. Let's use element 2. Okay, so यहाँ पर लिख दो heading 2 is not look better ना, I just use element 2. Okay, तो मैं पहले वाले को भी रख लेता हूँ, दैट इज डॉलर, सॉरी, जो हमने पहले लगाया था डॉलर हेडिंग 1 हैश के साथ. ओके, ओके, और मैंने पैराग्राफ के साथ भी लगाया था. ओके, नाउ लेट्स, आपके दोनों क्लासेस डिसअपीयर हो चुके हैं. अगर आपको पैराग्राफ को रिमूव करना है, जस्ट यूज P. तो P क्या करोगे, P लगाओगे तो आपका हेडिंग जो आपका H1 होगा, H2 होगा, वो वापस आ जाएगा. ठीक है, गेट इट, क्लास. नाउ इफ यू वांट टू रिमूव H2 और पैराग्राफ, H2 और पैराग्राफ को हटाना चाहते हो. ओके, पहले मैं इसको वापस कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. तो अगर आप H1, H2 और पैराग्राफ दोनों को हटाना चाहते हो, ठीक है, ऑल H2, ऑल पैराग्राफ, ऑल H2 एंड ऑल पैराग्राफ, तो यू विल सी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आएगा. तो सारे पैराग्राफ हट गए और सारे H2 एलिमेंट्स हट चुके हैं स्क्रीन से. ओके, so it means
all H2 and P elements. Okay, so this means paragraph belongs to class equal to element 2. Okay, so this means ID having, okay, ID. Now, okay, now next thing, I think we have discussed almost everything. Okay, now the first element we have discussed ID, we discussed class, we have discussed tagline. Okay, now let's discuss, I'll discuss it later, but I'm going to discuss these elements, that is child property. Okay, for that let's use a property here. I'm going to copy it. Okay, now I'm going to target P एलिमेंट, और P के अंदर जो स्पैन एलिमेंट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ, एंड फॉर CSS आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर टू रेड. Okay, so this is called targeting child element. Okay, so I'm target. So इसका मतलब क्या होगा, पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करना है. ठीक है, तो आप देखोगे ये जो इसको हमने स्पैन बनाया था और इस एलिमेंट को हमने स्पैन बनाया था, तो बोथ स्पैन एलिमेंट्स गोइंग टू बी कलर रेड. ओके, हाँ, डोंट मतलब आप इसके बीच में कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखा हुआ है. सो वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज. Okay, these are called CSS method, and this is a hide method, and we have discussed HTML method. So these are some methods. We will discuss in detail all these methods. But if you want to change any CSS, just use the CSS method. अगर आपको कोई भी CSS change करना है, like मुझे इसके अंदर एक और CSS भी लगाना है, तो मैं इसको, अगर आपको एक से ज्यादा CSS लगाना है तो आप ये यूज करोगे. So just use color red. ठीक है, and I am changing font size to be 24 pixels. तो अगर आपको दो CSS यूज करनी है तो आपको ये ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, and the same syntax we have used in the CSS और यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा. तो आप देखोगे मैंने दो CSS लगाया है, तो आप देखोगे यहाँ पर एक तो कलर रेड हो चुका है, एंड द फॉन्ट साइज आल्सो स्लाइटली बिगर देन द नॉर्मल फॉन्ट. ओके, नाउ अगर ये जो स्पैन एलिमेंट है इसको मैं यहां से हटा के बाहर लगा दूं, तो क्वेश्चन, आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या इसका कलर रेड होगा और फॉन्ट साइज चेंज होगा? क्लास, क्या फॉन्ट और सॉरी कलर और फॉन्ट चेंज होगा अगर इस स्पैन एलिमेंट में कॉपी करके मैं बाहर लिखता हूं तो? ओके, विनय सेड नो, कृष्णा नो, कनिष्क नो. ओके, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज नाउ span is no, this span is no longer the child element. This is not a child element. ठीक है, तो आप अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये चीज लिखी आ रही है. ठीक है, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने जो सिलेक्टर यूज किया है दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सिलेक्टर. ठीक है, इट विल टारगेटिंग द paragraph first, and in paragraph if there will be some span element it will target those span elements. Okay, now if I just want to target this one also, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ से P हटा दोगे. अगर आप इसको P को हटा दोगे, now it will target all the span elements. Okay, now you will see ये span element को target कर रहा है. Okay, it will target this span also. Okay, so I am going to again change to back to the P so that हमारा काम चलता रहे. Okay, so we have just discussed the child element.
we have discussed the class element, we have discussed the all multiple elements. Let's start discussing these pseudo elements. Okay, in order to apply these pseudo elements, let's create some unordered list. Okay, of 6. Okay, मैं 6 list item बनाता हूँ. I'm targeting every element. So I just write list item. Okay. तो मैंने 6 लिस्ट आइटम बनाई है. अब मुझे इनको टारगेट करना है. ठीक है. तो मैं चलता हूँ लास्ट में. और अगर आपको इसको टारगेट करना है तो आई जस्ट राइट अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है, या आप ऐसे लिख सकते हो या डायरेक्टली यू जस्ट कॉल द li. इसको मैं प्रॉपर तरीके से. तो मुझे अगर फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करना है तो जस्ट यूज फर्स्ट. ओके. सो इट मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो li है उसके फर्स्ट एलिमेंट को आई एम गोइंग टू टारगेट. सपोज आई जस्ट वांट टू चेंज द कलर, सो आई जस्ट यूज css. ओके. css के साथ मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो आई यूज कलर एंड आई एम चेंजिंग इट टू द ब्लू. ओके. तो आप देखोगे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट li है, दैट विल बी कलर्ड ब्लू. ओके. तो जस्ट सी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला एलिमेंट आपका ब्लू कलर का हो चुका है. ओके. द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑफ ब्लू कलर. ओके. नाउ अगर आप लास्ट एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हो तो जस्ट यूज last last and I'm going to change the color to like pink. Okay. So you will see even though it is not visible, so I'm going to change its color to say brown. Okay. Now it's I think it's visible. It's visible and this is the brown color now. Okay. Now the first element will be colored blue and the last element I am targeting with the pseudo element last. Okay. Now let's target the all even elements. So हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको हटा देते हैं. अगर आपको नहीं यूज करना, there is no issue. So I am targeting all even elements. ठीक है. और मैं उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ. So I am use background color to be yellow. ओके. तो आप देखोगे जितने भी इवन लिस्ट के ऊपर आपके एलाइज होंगे, दैट विल बी येलो. ओके. दैट विल बी येलो. ओके. नो आई एम यूजिंग इवन ना, li even. It's going to be odd. Okay. So let's देखते हैं odd में क्या आता है. If I'm targeting the odd one to gray. Okay. So it will take even to gray. Okay. Can everybody tell me what is the reason behind that? हाँ जी, कोई मुझे बताएगा इसका क्या रीजन है? हाँ जी बच्चा. I think it is going to be target according to the index value. Okay. It will create an array और वो उस array के accordingly उसको index कर रहा है. So the first index will be 0, second index will be 1. So 1 will be the odd value. I think that is going to be target. इस तरीके से शायद target हो रहे होंगे. Okay. Let's see. I'll just make it correct कि उसको find out कर रहे हैं, किसको find out कर रहा है. Okay. Now हाँ, because क्या होता है कि हम लोग जब जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं तो it will make it as a
इंडेक्स। तो जनरली क्या होता है, वो एरे क्रिएट करता है एंड एरे विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 0th इंडेक्स। ओके, आई थिंक दैट विल बी द लॉजिक बिहाइंड दैट कि वो इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई, मैं एक और लॉजिक लगा के देखते हैं। इफ आई जस्ट ट्राई टू फाइंड nth child having every third element. Okay, so I'll make their style to be list, I make उसका मैं list style null करने की कोशिश करता हूँ, list style will be null. Okay, let's see हर एक थर्ड एलिमेंट का लिस्ट स्टाइल चेंज हुआ या नहीं हुआ। ओके, so it is finding, okay, 3 raised to power 0 0, 3 raised to power 1, yeah, every third element. तो ये उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो लाइक अगर द इंडेक्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, so 3 into 0 equals to 0. Now 3 into index value 1 equals to 3. Okay, so I think yeah, वही लॉजिक है। so it works on index value. ठीक है, it works on index value. Okay, so every third element having list style none and every sixth element list style none. Okay, now so these are some selector. I'm just adding some more selector here. Okay, मैं कुछ और selector ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ चलते हैं unordered list के नीचे। Let's create an input of type button and let's create input of type submit. Okay, इसको कर देते हैं, this is a button and this is a submit button. Okay, now I'm going to add some classes here because we are already using the Bootstrap. So I'm making it button primary. Okay, we can also use here button secondary. Okay, or we can say it button danger. Okay, let's see. Yeah, these two buttons have been created. Now let's create input element. Okay, input element. Okay, input of text. Okay, I'm going to add classes here. Okay, tell me what is the class to make the input text to be take the entire width. Okay, हमने फॉर्म पढ़े थे, तो इनपुट के लिए हमने, ताकि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कुछ स्लाइड कुछ CSS लग जाए, तो उसके लिए हम कौन सा क्लास यूज करते थे? Okay, in the last lecture we have gone through the form. Class please, जल्दी बताओ। No, display block is basically, मैं अगर डिस्प्ले ब्लॉक लगा दूंगा, लेट्स ऐड डी ब्लॉक। ओके, तो आप क्या करोगे, कहाँ है ब्लॉक, कहाँ बनाइए? और जो स्टाइल मैं चाह रहा था, आई थिंक फॉर्म के अंदर हमारा स्टाइल कुछ अलग सा आ रहा था, ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा था कुछ। ओके, तो अगर मैं इसके अंदर विड्थ डाल देता हूँ, विड्थ 100%। ओके, बट स्टिल द स्टाइल आई एम नॉट गेटिंग। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मैं इसको हटा देता हूँ। वी यूज फॉर्म कंट्रोल, दिस इज द प्रॉपर्टी। वेरी गुड लतेश, लतेश का आंसर बिल्कुल ठीक था, दैट इज फॉर्म कंट्रोल। तो आप देखोगे नीचे मेरे को जो मैं थोड़ा सा इसके नीचे तो एक डिव डाल के उसके नीचे कुछ ऐड कर देता हूँ। so I'm adding margin bottom of 5. ओके, तो आप देख सकते हो ये बन तो गया है, बट मैं चाह रहा हूँ इसको यहाँ पर लेकर आना इनपुट एलिमेंट के साथ, बिकॉज फॉर्म कंट्रोल क्या करता है, उसको अगली लाइन में ले जाता है, मुझे ऊपर लेकर आना है।
इनपुट एलिमेंट के साथ। क्लास क्या करना पड़ेगा, इनपुट एलिमेंट के साथ लेकर आना है। इनपुट एलिमेंट्स के जो फॉर्म बटन है उनके साथ लेकर आना है। तो आई एम यूजिंग अ प्रॉपर्टी कॉल्ड, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड लतेश, अगेन आंसर इज डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, नो display inline, but it's not going to be inline na? Okay, I'll make the image, make the width to be 75%। शायद उसकी width ज्यादा है इस वजह से नहीं आ रहा। yes, आ चुका है ना, ये देखो सेम लाइन में आ गया, क्योंकि width उसका 100% था इसलिए वो अगली लाइन में जा रहा था। okay, let's take it to 50%। okay, now I'm targeting these elements। इन एलिमेंट्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो इनको टारगेट करने का तरीका क्या है, टारगेट फॉर्म एलिमेंट। ओके, इनको टारगेट करने का तरीका क्या है, जस्ट राइट कॉलन और जिस प्रॉपर्टी को आप टारगेट करना चाहते हो। लाइक आई एम टारगेटिंग द बटन, बटन इज द टाइप, दिस इज द एक्चुअल द टाइप। हमने टाइप लगाया था ना ऊपर, टाइप। ठीक है, तो मैं टाइप के कोरस्पॉन्डिंग किसी को टारगेट कर रहा हूं तो मैं लगाऊंगा कॉलम। आई थिंक दिस इज द सेम थिंग दे हैव बीन यूज्ड इन CSS, सॉरी BUTT एंड बटन, और मैं इसको टारगेट कर रहा हूं। ओके, आई एम गोइंग टू मेक इट हाइड, मैं इसको हाइड कर रहा हूं। तो आप देखोगे पहले वाला बटन हाइड हो चुका है, फर्स्ट बटन इज हिडन। ओके, डिस्प्ले नन हो चुका होगा, उसका डिस्प्ले नन हो जाता है एक्चुअल में। ठीक है, नाउ अगर आप टेक्स्ट को टारगेट करना चाहते हो तो लाइक सबमिट, आप देखोगे सबमिट हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक टेक्स्ट एलिमेंट को हाइड करना चाहते हो तो इन प्लेस ऑफ सबमिट जस्ट राइट टेक्स्ट। ओके, नो इट टेक्स्ट इज नॉट हिडन ना, so let's check type equals to text, it should be hidden na, text not going to be hidden, text क्यों नहीं hidden, तो एक्सपोज करके देखिए। नो नो नो, इट्स गोइंग टू बी text ना, बिकॉज हमारी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज text। okay, let's use another property। class एक सेकंड, जस्ट वेट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, जैसे आ जाए। ओके, so class I think we should apply something different। तो हम क्या करते हैं, इनपुट एलिमेंट को टारगेट करते हैं हैविंग टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। आई थिंक लेट्स ट्राई, ये अप्लाई होता है कि नहीं होता। इनपुट एलिमेंट के अंदर जो उसका एट्रीब्यूट है टाइप, उसकी वैल्यू अगर टेक्स्ट हो इट शुड बी हिडन। इट इज नॉट हिडन, आई थिंक शायद कुछ प्रॉपर्टी की वजह से हिडन नहीं हो रहा। मैं इसके अंदर से कुछ क्लासेस हटा देता हूँ। यस यस, हाँ, कुछ हमने एडिशनल क्लासेस लगा दिए हैं शायद, उस वजह से हाइड नहीं हो रहा था। ओके, तो आई जस्ट चेक कि ये इशू क्यों हो रहा है कि क्लासेस की वजह से वो हाइड क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया था। ओके, मैं बताता हूँ, ये डिस्प्ले जो इनलाइन लगा हुआ है ना, इसकी वजह से हो रहा है। बिकॉज हाइड प्रॉपर्टी क्या करती है, डिस्प्ले ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है, डिस्प्ले नन कर देती है। एंड आई एम अगेनिंग मेक इट विजिबल यूजिंग द डिस्प्ले इनलाइन, तो इस वजह से आ नहीं रहा। देखो अब चल जाएगा। ठीक है, मैं इसको वापस करता हूँ, इसको इसको हाइड को हटा देता हूँ, तो आप देखोगे नीचे एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है ना। लेट्स ऐड मार्जिन टॉप टू 2।
ओके नाउ द एलिमेंट इज विजिबल, बट अगर मैं इसको हाइड करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो ये हट जाएगा। बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज जब मैं हाइड फंक्शन कॉल करता हूँ, हाइड फंक्शन इन बिल्ट क्या करता है, डिस्प्ले को नन कर देता है। और मैं उसके अंदर एक और क्लास ऐड की थी, दैट इज डिस्प्ले इनलाइन, तो वो क्या करता है, उसको वापस ऑन कर देता है। या बिल्कुल कनिष्ठ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि वो डिस्प्ले इनलाइन कर रहा है, तो डिस्प्ले इनलाइन में वापस उसको ऑन कर दो और डिस्प्ले नन हट जाता है। आई थिंक दैट इज द रीजन कि वो आ रहा था। ओके नाउ आई थिंक द प्रॉपर्टी वर्क्स वेल। ओके नाउ मैं एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, लेट्स ऐड सम एंकर टैग। ठीक है, एच रेफरेंस डालता हूं मैं, http ओके twitter.com, okay, and the word is Twitter. Sorry. Okay, मैं इसको कॉपी करता हूँ। सेकेंड वन इज facebook.com. ओके नाउ अब मैं कैसे चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट इसके कलर क्या होंगे, ब्लू कलर होंगे। आई जस्ट वांट टू चेंज द कलर। देखो अगर मैं इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो आई थिंक ये वाली तो काम कर ही जाएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एंकर के ऊपर, जिसके ऊपर एच रेफरेंस लगा हुआ है, अगर आप सिर्फ एट्रीब्यूट को टारगेट करना चाहते हो तो आप ए एच रेफरेंस लगाओगे। तो अगर मैं इसका सीएसएस चेंज करना है, दैट कलर शुड बी रेड। ओके, तो आप देखोगे डिफॉल्ट कलर चेंज होके क्या आ गया, रेड आ गया। बट प्रॉब्लम क्या हुई, दोनों का रेड हो गया। मुझे सिर्फ फेसबुक का रेड नहीं करना, सिर्फ ट्विटर का रेड करना है। ओके, so then I have to mention h reference equals to, क्या लिखना पड़ेगा, http मुझे किसका करना है, फेसबुक का, सॉरी ट्विटर का करना है ना, तो आई जस्ट यूज twitter.com। तो क्या होगा, वो सिर्फ twitter.com का कलर चेंज करेगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो फेसबुक का वापस ब्लू कलर ही आ रहा है। ओके, तो अगर आपको एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट के बेस पे, उसके एट्रीब्यूट वैल्यू के बेस पे अगर आपको कुछ चेंज करना है, तो यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अगर आपको एट्रीब्यूट के बेस पे करना है तो आप ये स्टेटमेंट लगाओगे। ठीक है, अगर आपको वैल्यू के बेस पे करना है, दिस इज द बेस्ड ऑन टारगेटिंग based on attribute. Now in this case I'm targeting based on attribute value. ओके, अगर आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू के ऊपर आपको टारगेट करना है तो आप इस तरीके से करोगे, और अगर आपको एट्रीब्यूट के बेस पे करना है आप सिंपली ये यूज करोगे। मैंने यहाँ टारगेट वैल्यू तो बता ही दिया था आपको। ठीक है, आप इसमें ए हटा भी सकते हो, देयर इज नो नीड टू यूज ए, तो क्योंकि एच रेफरेंस आई थिंक सिर्फ एंकर का ही होता है। ठीक है, इमेज का तो सोर्स होता है। ठीक है, तो आप इसको हटा सकते हो, स्टिल वर्क। Okay, so here we completed all the selectors, either it is basic one or either it will be an advanced selector. Okay,